Hello students, welcome to another important video and this is the continuation of top 100 QA questions for upcoming Z examination. तो 3-4 पार्ट आई थिंक अपलोड हो चुके हैं. You can watch those parts और उसके बाद प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं. So with the first question of the video that it is asking that there are 6 straight lines and there are 5 circles, they are intersecting each other. Maximum how many intersection points can be obtained? तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट करते हैं और एग्जाम में फेवरेट्स हैं, राइट. जेड जैसा एग्जाम आपसे फॉर्मूले की बात नहीं करता, आपसे कंसेप्ट की बात करता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द जेड एग्जामिनेशन. सो वी हैव 6 स्ट्रेट लाइंस, राइट. सो यू शुड नो दैट व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन intersect each other, we can have the one intersection point. And similarly, when a line and when a circle intersect each other, there can be maximum 2 intersections point. And similarly, when 2 circles intersect each other, maximum 2 intersections are possible. That is the concept behind it, right? So suppose we have 6 lines and we have 5 circles. We want to find the maximum number of the intersections, right? So either 2 lines can intersect each other, either line or circle can intersect each other, or even circle can intersect each other. That is a possible combination, right? So when line and line are intersecting each other, we have to select 2 lines out of 6, and for every intersection we will be having one intersection point. Similarly, when a line and when a circle are intersecting each other, we can have the 2 maximum points. So I can say 5C2, sorry, line. So we have 6 lines, so we have to select any one line, and we have a circle, that is 5 out of 1. We have to select one circle out of 5, that is 6C1, one line out of 6, 5C1, one line out of one circle out of 5, and for every intersection we'll be getting 2 points, right? And similarly, when 2 circles are intersecting each other, so we have to pick any 2 circles out of 5, that is a 5C2, and for every intersection we'll have a 2 intersection point. And when we add these, we have the total number of intersection points. So this is coming out to be 6 into 5 and 30, 15 plus 15, and this is 6 into 5, 30 into 2, 60 plus this is 5 into 4, 10 का डबल हो जाएगा. तो this is 15 plus 60 plus 20. So 95 is the correct answer of the question. I hope it is clear, right? So this is a basic understanding because we have to maximize the points. So that's why I have to take the scenario जहाँ पे हमको maximum points मिलते हैं. Some students can think, sir, we can have only one intersection point, but that is not the condition for the maximum points, right? So that's why I have to choose this condition so that I can have the maximum number of intersection points, right? So moving to the next question. So we have the next question that is again easy है because ये आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, राइट. देखो, so now it is asking that Ravi took a loan of a certain amount at a simple interest of 4% per month, right? So Ravi took a loan and second is Rahul. So both of them took a loan that rate of interest for the Ravi is 4% per month, and for the Rahul it is 12% per annum, right? So if the rate of interest is 4% per month, means in the annual scenario, if I talk about annually, this is going to be 48 because 4 into 12 is 48% per annum, and Rahul is paying only 12% per annum. So of course Ravi will be bearing the more interest. उसको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हैवी है. 48% एक साल पे दे रहा है, 100 रुपये पे 48 रुपये दे रहा है. एंड बोथ ऑफ देम टुक अ सेम लोन, राइट. It is given that Rahul took the same amount of loan and the difference in their interest, the difference in their interest in 1 year was 1,80,000. Means according to the question, in my case the difference will be 48 minus 12, that is 48% minus 12% is 36% of the principal amount, and that is given to us 1,80,000, right? So from here I can get P equals to 36 into 5, 180, and this is coming out to be P equals to 5, and then और ये नीचे 100 आएगा, उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो P is coming out to be 5 lakh. तो principal was 5 lakh. So 5 lakh is the right answer, option number D. I believe it is clear. Now moving to the next question.
This is question from the time and work. Now it is asking that is it done? ओके सो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको बेसिक इक्वेशंस बनानी है एंड द क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. So now it is saying that there are 5 more men. If there are 5 more men in a workforce, they will complete the work in 16 days less to complete a job. Means whenever we are talking about the work, this is nothing but the man into days, man days. So now it is saying that when there are 5 more men, 16 days are less taken. And similarly, if there are 12 more men, the work will be completed even in 30 days less time. This way 30. So we have to find the ratio of the man and the time taken. आपको m और d का रेशियो निकालना, राइट. तो अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो वर्क है वो तो हर केस में इक्वल एम डी, यहाँ से इक्वल आएगा m+5 और यहाँ से दोस्तों दैट इज d-16. तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे एम डी इक्वल्स टू दिस इज एम डी -16m प्लस का 5d माइनस का 80. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको इधर ले आते हैं. 80 इक्वल्स टू 5d माइनस का 16m, 5 कॉमन ले लेते हैं. 16 इक्वल्स टू दैट इज d माइनस नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज आई वाज थिंकिंग 15. तो ये पहला इक्वेशन आ गया. सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन बना सकते हो. एम डी इक्वल्स टू m+12 टाइम्स d-30. तो यहाँ से दोस्तों एम डी इक्वल्स टू एम डी -30m प्लस का 12d माइनस का 360. तो एम डी से एम डी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से दोस्तों 360 इक्वल्स टू ये बचेगा 12d माइनस का 30m. तो यहाँ से 6 कॉमन लग रहा है मुझे, दैट इज 60 इक्वल्स टू 6 2 12 एंड 6 5 30. सो वी हैव 60 इक्वल्स टू 2d माइनस 5m, वी हैव 80 इक्वल्स टू 5d माइनस 16 है. So I can solve this question because now we have 2 variable, we have 2 equations. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो there are many ways, right? बस मैं ये चेक कर लूँ कि हमने कुछ गलत ना किया हो, क्योंकि यहाँ पे 5 और 16 का था 80 और यहाँ पे दोस्तों 12 और 30 का, राइट. सो ओके, सो नाउ वी हैव 2 equations. I am going to solve them. There are many ways, right? There are many ways. So ये काम करते हैं. 80 इक्वल्स टू 5d माइनस का 16m और यहाँ से दोस्तों 60 इक्वल्स टू 2d माइनस का 5m. तो d को एलिमिनेट कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से करते हैं. दिस कमिंग आउट टू 160 इक्वल्स टू 10d माइनस 32m और यहाँ से दोस्तों दैट इज 300 इक्वल्स टू 10d माइनस का 25m. माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस का 140 इक्वल्स टू माइनस का 7m. तो m का वैल्यू 20 आ जाएगा. तो अगर m का वैल्यू 20 आ जाएगा तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ m इन एनी इक्वेशन टू गेट द d. तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ 60 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ d माइनस के 5 इंटू 20. तो यहाँ से दोस्तों 160 इक्वल्स टू 2d. तो फ्रॉम हियर आई कैन से d इक्वल्स टू 80. तो d का वैल्यू 80 आ गया, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो, राइट. तो m और d का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो मैन और टाइम टेकन का, तो 20/80. यहाँ से रेशियो 1:4 आ जाएगा, राइट. यहाँ से रेशियो 1:4 आ जाएगा, ठीक है. तो ये सवाल का राइट आंसर है. आई एम थिंकिंग समथिंग डिफरेंट कि अगर और कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. ठीक है, यही करना पड़ेगा, राइट. अलजेब्रा में ही चला जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए एंड होपफुली आप इसमें फंसे ना, क्योंकि अगर आप ज्यादा इक्वेशन बनाएंगे तो माइट बी पॉसिबल यू स्टक, राइट. सो इट इज सेइंग दैट सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 584. प्रॉपर्ली विजिबल है. द सम ऑफ द terms of an AP. We don't know the number of terms, so let's say the first term is a, then a plus n, a plus d, then a plus 2d, and so on up to an, right. So this is coming out to be 584. And similarly, if the last term is excluded or removed, means a plus d plus a plus 2d
and similarly a n minus 1 because last term has been removed. The summation gives 525. So one thing you can notice without going into the formula, that the value of the last term should be equals to 59. Why so? Why so? Because right, because 50 584 minus 525 will give you 59, and अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली ए एन विल बी बैलेंस, राइट। तो ए एन का वैल्यू 59 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इज सेइंग दैट फर्स्ट टर्म इज रिमूव्ड। इफ फर्स्ट टर्म इज रिमूव्ड, राइट, if the first term is removed, so we are left with a plus d and a plus 2d, and similarly up to a n. This is given to us 570, राइट। सो ये 570 देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को देखता हूँ तो ये 570 है, तो यहाँ से पहला जो टर्म आ जाएगा 584 माइनस 570, तो ये दोस्तों 14 बन जाएगा, राइट। सो वी हैव द nth term also, we have the first term also. Now we have to find the fifth term, right? आपको फिफ्थ वैल्यू निकालना, फिफ्थ टर्म निकालना। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं बच्चे? a5 इक्वल्स टू a प्लस 4 टाइम्स ऑफ d। बट पंगा ये है कि अभी d नहीं पता, ठीक है, पंगा ये d नहीं पता, कोई बात, देखो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताता हूँ, तो एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। द नंबर ऑफ टर्म्स आई डोंट नो, राइट, बट द समेशन इज गिवन टू अस। The summation is given to us 584. So 584 equals to n upon 2. First term is 14 and the last term is 59. So 59 and 14 is 73, and 73 into 6. So this is coming out to be 73 into 8. This is coming out to be 584, right? 3 8 24, yes. तो यू कैन से दिस इज n इक्वल्स टू, दिस इज कमिंग आउट टू 8, तो n का वैल्यू 16 आ जाएगा। n का वैल्यू 16 आ जाएगा, मतलब देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 16 है, देयर आर 16 टर्म्स, राइट। सो वी हैव 16 टर्म। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि a प्लस 15d का वैल्यू 59 है, और जिसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो आपके पास 14 आ गया, तो 15d का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 59 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपके पास 14। तो यहाँ से दोस्तों 15d का वैल्यू 45 आ जाएगा, which means d का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो once you get the value of d, we can find the fifth term, that is a is 14 plus 4 into 3, so 26 इसका राइट आंसर बनेगा, that is option number C correct। Is it clear, right? Now moving to the next question। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होता है ना, राइट, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचे, एंड क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है मैंने। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको भी। देयर इज अ फ्रूट शॉप सेल्स एप्पल इन अ बॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, राइट। ये पूरा अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इसको सो the fruit shop sells apples in a boxes of different size. The selling price of each apple is 5 rupees per unit and the minimum number of apples in a box is 100, right? मीन्स क्वांटिटी आपके पास मिनिमम 100 है, और यहाँ पे यूनिट प्राइस जो है वो 5 रुपये का है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है दोस्तों, वो 100 इंटू 5 दैट इज 500 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बट कस्टमर को अल्योर करने के लिए क्या किया गया है, दैट फॉर एवरी एडिशनल 25 एप्पल्स आर एडेड, the price of the entire boxes goes down by 25 पैसे पर एप्पल। आपने जैसे ही 25 एप्पल जोड़े तो प्राइस जो है आपने 25 पैसे पर एप्पल के हिसाब से कम कर दिया। तो कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होने चाहिए एक बॉक्स में, सो दैट उसका जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम रेवेन्यू पे आ जाए, राइट। देखो, तो इसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो 100 क्वांटिटी में आपको 25 का कोई भी मल्टीपल लेना है ना। भाई हमने मान लिया 100 प्लस 25x, अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 25 एप्पल पुट करेंगे तो 125 एप्पल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया क्वांटिटी। अभी प्राइस के बारे में बात करते हैं। पहले प्राइस 5 रुपये है, अभी हर 25 पे आपके प्राइस जो है वो 25 पैसे से डाउन हो रहा है, दैट इज 0.25x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 25x और 5 माइनस x बाई 4। हाँ, इज इट वन एंड द सेम थिंग, राइट। मतलब आपके पास क्वांटिटी हो गया, आपके पास प्राइस हो गया, और ये यूनिट प्राइस की बात कर, राइट। तो अगर मैं इस रेवेन्यू फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये 500 हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा माइनस का 100x, ये 100 नहीं 25x, क्योंकि 100 इंटू एक्स बाई 4 25 और 25 इंटू 5 125,
और ये बनेगा दोस्तों माइनस का 25x² अपॉन 4। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आ गया। और ये रेवेन्यू फंक्शन की एक खास बात है कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव और ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। और प्लस का 100x प्लस का 500। ठीक है, अब आपको इसको मैक्स करना है। हाँ, इस रेवेन्यू फंक्शन को आपको मैक्स टू मैक्स करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैक्स होता है एट x इक्वल टू माइनस का b/2a। ठीक है, तो अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आप इसको मैक्स करना चाहते हैं, तो x इक्वल टू माइनस का b/2a पे होता है। और a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका मिनिमम वैल्यू देने वाला है, और a अगर दोस्तों लेस देन 0 है तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। a अगर पॉजिटिव है तो आपको यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मिलेगी, और a अगर नेगेटिव है तो यही पॉइंट आपको मैक्सिमम का पॉइंट मिल जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। तो आपके पास a नेगेटिव है ना, तो ये मैक्सिमम मिलने वाला है। तो माइनस का 100 अपॉन, और a का वैल्यू है माइनस का 25/4। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों 100 अपॉन मतलब 2/25। तो यहाँ से जो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। मतलब जब आप 8 एप्पल्स पुट करेंगे 8 के मल्टीपल में, ठीक है, x का वैल्यू 8 आ गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम एक बॉक्स में? तो 100 प्लस 25 इंटू 8। तो आप एक बॉक्स में 300 जब क्वांटिटी पुट करेंगे तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम का केस है। इसके एक आगे पीछे के नंबर सॉल्व करके देख लेते हैं, राइट। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा। तो हमने मान लो एट 300 पे लिया रेवेन्यू, तो 300 का मतलब है कि 300 का क्वांटिटी है। प्राइस कितना है भाई? आपके पास x की वैल्यू 8 है ना, दैट इज x/4। तो x की वैल्यू 8 रखने पर 2 आ जाएगा, तो 3 रुपये का आपको पड़ेगा ये 900 रुपये। आप 900 रुपये कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से, राइट। अब मान लेते हैं आपने x की वैल्यू, मान लो आपके मन में आया सर 400 कर लेते हैं, एक डब्बे में 400 कर लेते हैं। तो 400 करने के लिए लाल मेरे भाई, 400 करने के लिए ना भाई, आप ये कह रहे हैं 100 प्लस 25 इंटू एक्स, और इसको आपको 400 करना है ना, तो 25x की वैल्यू हो जाएगी 300। तो x का वैल्यू आपको 12 करना पड़ेगा। तो अगर x का वैल्यू 12 कर दिया तो क्वांटिटी तो 400 कर लिया आपने, लेकिन आपका जो डिफरेंस है प्राइस है वो देखो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 इंटू x/4, तो 12 के लिए दोस्तों ये हो जाएगा 2 रुपये का। तो जब आप 2 रुपये लेंगे तो आपको तो 800 ही मिलेंगे। तो कौन से ज़्यादा बेटर है? इसलिए हम मैक्स टू मैक्स उसमें 300 क्वांटिटी डाल सकते हैं, सो दैट आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा, आपका मतलब शॉपकीपर का, राइट। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी जीपी का क्वेश्चन है। नाउ इट इज सेइंग दैट there are 1036 marbles are divided among the 4 boys, right? So there are 4 boys and the 1036 marbles are divided, they are forming a GP such that the common ratio which is the natural number, right, means r की वैल्यू कम से कम 1 हो सकती है, receive the distinct natural number, सबको अलग अलग भी मिलने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स विद द बॉय हैविंग द सेकंड लीस्ट, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं जीपी की बात करता हूँ, AR स्क्वायर ARQ, हाँ 4 लोग हैं, ऐसे ही मिल सकता है सबको। और ये दोस्तों 1036 है ना, ऐसा सबके पास मिला के। ये हमने ए इज अ फर्स्ट टर्म, अगर आप जीपी जानते हैं तो फर्स्ट टर्म है दोस्तों, और आर आपका कॉमन रेशियो होता है, राइट, कॉमन रेशियो, ठीक है ऐसा। तो अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का क्यूब 1036, ठीक है। सवाल ये है भाई, मार्बल्स है तो इंटीजर ही हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब कि a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का क्यूब, इट शुड बी समथिंग दैट इज लाइक 1 इंटू 1036 और 2 इंटू 568, समथिंग लाइक दैट, नहीं 518। और अगर मैं 3 से देखूंगा तो 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से चला जाएगा, दैट इज 4 इंटू 4 25 चौके 100, ऐसा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, राइट, मतलब या तो ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। तो थोड़ा सा इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, राइट। 6 से भी जा रहा है क्या ये भाई? 6 से तो ऐसे जाएगा नहीं, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 से तो नहीं जाएगा, राइट। तो कैसे पता चलेगा सर कौन सा आंसर होगा, राइट। देखो, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर पहला वाला केस लेता हूँ ना भाई, अगर मैं ए की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का क्यूब, और ये आपको 1036 करना है, ठीक है, मेरा अजम्पशन है।
तो ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब करने पर 1000 के आसपास आए तो दिमाग में घंटी बज सकती है, सर आर का कम से कम आपको 10 लेना पड़ेगा, आर 10, ठीक है 10 लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपको ये नंबर मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। 11 लेने पर ज़्यादा हो जाएगा, 9 लेने पर कम आंसर आएगा। आप 9 भी लेके देख लो तो 9 का मतलब 729 हो जाएगा, 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये 9 + 1 ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों 810, तो ये तो 820 ही बन पाया। तो इसलिए 9 भी पॉसिबल नहीं है, 10 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला अजम्पशन आपका हो गया रॉन्ग। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम सेकंड वाला अजम्पशन देख लेते हैं। ए का वैल्यू अगर 2 है तो 1 + r + r² + r का क्यूब, ये आप कह रहे हो 518। अब 518 मतलब ऐसा कोई नंबर जो क्यूब हो 518 के नज़दीक हो तो 512 ही दिमाग में आता है, राइट। तो अगर मैं r को 8 ले लेता हूँ तो 8 लेने पर दोस्तों हो जाएगा 1 + 8 + 64 + 512, तो ये तो हो जाएगा 576 + 9 585। पॉसिबल ही नहीं है, आपको तो 518 लाना है। 7 पे कम आएगा क्योंकि 7 का क्यूब ही 343 होता है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ए वाला केस देख लेते हैं। ए का वैल्यू 4 अगर है तो 1 + r + r² + r का क्यूब, ये है 259। ऐसा कोई नंबर जो कि क्यूब करने पर 259 के आसपास आए तो दिमाग में घंटी बजे, आर की वैल्यू 6 हो सकती है। तो अगर आर की वैल्यू को मैं 6 पुट कर देता हूँ तो 216 + 36 + 6 + 1 हो गया, देखो 252 + 7 259, दैट्स इट। मतलब आर का वैल्यू 6 आ गया और ए का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो आपसे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स विद द बॉय हैविंग अ सेकंड लीस्ट, राइट। तो मतलब जो मार्बल है पहले के पास 4 हैं, दूसरे के पास 4 × 6 24 हैं, तीसरे के पास 6 से मल्टीप्लाई 144 और फिर है दोस्तों 576, ठीक है। 216 × 4 216 × 4 है, कुछ एरर कर दिया क्या हमने? अच्छा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो हमने 6 का बनाया ना, तो x, हाँ ठीक है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 864 864, ठीक है। तो ये तो हाईएस्ट है, आपसे बोलते हैं सेकंड लीस्ट नंबर। सेकंड लीस्ट नंबर मतलब लीस्ट नंबर और सेकंड लीस्ट नंबर, राइट। तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें दैट इज ये आंसर 24। ये लीस्ट नंबर, ये सेकंड लीस्ट, ये थर्ड लीस्ट, ये फोर्थ लीस्ट, मतलब ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, तो सेकंड की बात कर रहा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव लॉ का क्वेश्चन है और ये गंदा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे बिकॉज थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है। सो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आप वीडियो को एंजॉय करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। कोई डाउट है तो, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉफ्ट कॉपी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ये अवेलेबल है, लेकिन अभी नहीं, पहले 100 क्वेश्चन होने के बाद में। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब, नॉट कॉन्ट्रैप MBA स्कॉलर्स, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।